Yeah. So, welcome everyone. Thank you for taking out the time to be here tonight. So, just an introduction about why these sessions are there. So, what is the vision behind the sessions? So, as every age, in every human age, we have some or the other challenges that we go through, and many a times we are not able to share those challenges and maybe get some other light on that. That maybe I can look it at लाइक दिस और दैट होता क्या है कि हम अपने ही माइंड पैटर्न्स में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि अगर हम उसको मिलके शेयर करें एक सेफ स्पेस में जहाँ पीपल आर नॉट जजिंग यू ऑफ ऑन व्हाट यू आर शेयरिंग, पीपल आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग कलेक्टिवली ऑन इट, तो कुछ खुल जाता है ना. वी गेट अ न्यू व्यू पॉइंट हाउ आई कैन गो थ्रू दिस चैलेंज और मे बी what this challenge is trying to show me, right? Because each and every challenge or difficulty in our life, it shows us something, it reveals something to us. So the vision behind these sessions is that people who are in the age group of 18 to 28 specifically, and even if you are not in that age group, does don't mind, you can be here. um, uh, so especially in those age groups, so that we can focus on some special issues which we face in these years, formative years, where we are out in the world and dealing with world, the job, the office, finances, and maybe living all by ourselves and trying to maybe find what I'm going to do in life and feeling lost about it. So all these things are not very special to each one of us. They are faced by the whole of mankind, and if we allow ourselves to share these challenges, maybe something else is seen, maybe something else is revealed. So this is not a solution or advice giving platform. This is just a reflection invoking platform where we can share the challenges, and we can, and if you have gone through similar challenges, then you can share that, I went through that, and this is how, this is most welcome at any time. So anything that is burdening, anything that is कुछ कसोट रहा है, मसोट रहा है दिमाग में, और आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं किसी के साथ, आई वॉन्ट टू walk find a way through, but I'm not trying, I'm not kind of getting the way through. So you can put it here if you feel like. Or initially you may face, for those of us who are here for the first time, they may face a bit of hesitation, कि करूं नहीं करूं, चलो दूसरों का सुन लेती हूँ, या जो भी, एनीथिंग लाइक दैट. सो अलाउ योर सेल्फ टू हेजिटेट, and allow yourself to go through that little discomfort of asking something or putting something in front, even with the hesitation. Agar, if I am today sitting in front, or we are all sitting here, we are all having our own hesitations, right? कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या whatever, all kind of things that mind tells us. Even owing to the fact that they may be there, the thoughts, let it be, and just allow yourself to share, huh? And when we will share, we will collectively reflect, then something, some new window opens up, and uh, like a fresh breath of air. uh, and we all deserve that fresh breath of air, we all deserve that lightness in the being, है ना? Burdensome रहना हमारी जिंदगी की destiny नहीं है. We can change it. We can allow ourselves to leave the burdens, understand the burdens, and live a lighter life. So that is the vision. And yeah, is there anything more you want to add, Taru? नहीं, thank you. So with that, we can take this session in any direction as we feel comfortable. There can be more silent time, there can be more talking time, it does not matter. Whatever benefits us, basically, that is where we want to take this session to. Whatever opens us, whatever widens and expands us, right? So I'll mute myself and take a pause, and feel free to share whenever you're ready. You can unmute and then share.
Hi, I will go. I'm Mahima. This is my second time here. Okay. I am planning my first solo trip और मुझे डर लग रहा है पर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने ये कर लिया ना तो मैं खुद को काफी ट्रस्ट करूंगी। मतलब मैंने अकेले ज्यादा रहा नहीं है तो मुझे थोड़ा अकेले रहना सीखना है। मैंने ऐसे स्कूबा डाइविंग वगैरह भी बुक की है और मतलब मेरे को डर भी लग रहा है और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। हाँ, मेरी मम्मी और ठीक है पापा भी शायद वो काफी वैसे हैं कि हमारे सामने ही रहो घर पे ही रहो। बिल्कुल वो घर में को दिन में 4 बार फोन करते हैं और चारों बार वीडियो कॉल। तो मतलब मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मैं करती नहीं हूँ, मुझे करनी है पर मुझे कंट्रोल भी नहीं होना। मतलब कि मैं उन्हें मना भी कर पाऊँ कि मत करो फोन लेकिन मैं गुस्सा ना करूँ। और मेरी मम्मी कई बार ऐसा लगता है मैं अपनी मम्मी की मम्मी हूँ। मतलब मैं उनका ध्यान रखती हूँ और वो नहीं रखती अपना। और वो ऐसे चाहती हैं कि मैं उन्हें संभालूं और मैं ना घूमूं, मैं घर ही रहूं। वो जल्दी से वो चाहती है मैं घर रहूं, मैं पढ़ाई करती रहूं, मैं मास्टर करती रहूं, पीएचडी करूं और ये सब करूं और फिर वो सीधा मेरी शादी कर दें यार। ऐसा मतलब पता नहीं क्या है उनको। मतलब मुझे लड़ना नहीं है, मैंने काफी लड़ लिया पर मुझे करना भी वही है जो मुझे करना है। या तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ उनसे और कुछ थोड़ा गंदा साइड चली जाती हूँ, या मैं बिल्कुल हर बात मानती हूँ उनकी। मतलब मुझे वो पेरेंट्स नहीं बनता और मुझे उनको ऐसे संभालना है कि मतलब मुझे केयर करना है पर मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पे डिपेंडेंट रहें। पर वो पता नहीं, मुझे मम्मी के लिए डर लगता है क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, मतलब इमोशनली टाइप। वो कहती हैं तू मेरी काउंसलर है, तू ही मेरी फ्रेंड है, तू ही है जो मुझे समझती है और मेरे साथ ही रहे। अब वो मुझे ट्रिप पे नहीं जाने देना चाहती कि मुझे रास्ता कौन दिखाएगा अगर तू चली गई। मतलब इतना ड्रामा किया है, इतना ड्रामा करती हैं। मतलब मुझे बाउंड्रीज बनानी है उनसे पर मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं रखनी। पर मैं चाहती हूँ वो अपना ध्यान भी रखें मेरे बिना, तो मुझे बस उनके लिए थोड़ा डर लगता है। हाँ हाँ बोल दिया इतना ही। Thank you for sharing, Mahima. That was really beautiful what you shared. It's really beautiful to just acknowledge what all is there, कि डर भी है, excitement भी है, I want to do this, uh, but I since the fact that I have not done this before, hesitation is also there. So it's beautiful to acknowledge it, And the example we usually use is that if I'm touching water for the first time, if I'm trying to jump into the pool for the first time, there will be hesitation. You cannot avoid hesitation. There will be hesitation. So nothing to do with the hesitation. Let the hesitation be there. But I also know that मुझे jump भी करना है. So that was really so beautiful. It's just the light of our spirit shining itself out. When we allow ourselves to expand. और जब आप शेयर कर रहे थे पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपको पता है ये मेरे लिए सही है ना, दिस इज राइट फॉर मी, दिस विल एक्सपैंड मी और मुझे एक्सपैंड होना है।
this is the push of the spirit, you know, हमारे अंदर जो जान है, something that is alive within ourselves. This is so beautiful. So first of all, you know, more power to you, more grace to you, more power to you. Secondly, you know, when you were sharing कि मुझे respect भी करनी है, like a compulsion, you know, कि क्योंकि माता पिता को कहा गया है कि respect करो, तो अब करनी तो बनती है, पैदा किया है, इतना काम किया है मेरे लिए. You know, I would like to challenge it a little bit and see maybe others have to say something on it. देखो, respect हम किसकी करते हैं? Respect हम उसकी करते हैं जो respect वर्दी होता है ना? You feel, for example, you are meeting somebody, है ना, आपको पता है कि maybe that person oozes out grace, or I don't know, you know, he's very understanding in nature, or maybe very, I don't know, whatever may resonate with you, and somehow respect oozes out. It's a byproduct of an interaction, right? What happens to us if we are not feeling as a byproduct respect, but the mind is saying, but you must, because he's your dad, she's your mom, you know. क्या कैसा फील करते हो जब ये बर्डन अपने अंदर लाते हो, अपने ऊपर डालते हो, कि रिस्पेक्ट फील नहीं हो रही है, कुछ ऐसा रिस्पेक्ट वर्दी अभी दिख नहीं रहा है. हो सकता हो, मैं ये नहीं कह रही, सब में होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर माता पिता रेस्पेक्ट वर्दी हो. एंड आई एम टॉकिंग आउट ऑफ अगेन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, नो क्लैशेस विद पेरेंट्स बीइंग रिस्पेक्टेड, बट जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, यू नो, जब हम कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए नहीं इतना किया, इतना किया, अरे भाई किसी और बच्चे के लिए तो नहीं किया, तुम्हारे लिए किया. क्यों किया? क्योंकि तुम उनके अपने थे, खुशी से किया. जब कर रहे थे, जब वो अपनी खुशी से कर रहे थे कि ये मेरा बच्चा है, मुझे करना है इसके लिए, यू नो, तो ये थोड़ी ना सोच के कर रहे थे कि मैं जब अभी अगर मैं कर रहा हूँ, तो इसको 10 साल बाद मेरे लिए भी करना है, क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन हो गया ना, वो तो मार्केट हो गई, बार्गेनिंग हो गई वो तो, कि तू, मैंने क्योंकि तेरा किया, इसलिए तू 10 साल के बाद मेरा भी करना. अच्छा, 10 साल के बाद अगर थिंग्स बदल गई, यू नो, तो फिर भी अपने ऊपर लाद के रखोगे कि मुझे करना है, मुझे करना है, फंसाते रहोगे उसके अंदर. So I want to ask you, and I want to ask others also here, how do we feel when I don't see anything respect worthy, but I'm something from the past is telling me, owing to the relationship that person has in my life, the role of a father, role of a mother, क्योंकि लोगों ने कहा हुआ है, सोसाइटी से सुना हुआ है, respect करो माता पिता की. How do you feel when you have that burden on your head? कैसा लगता है? Yeah. तो क्या कहते हैं, जैसे हम हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी रिस्पेक्ट आनी चाहिए, ये हमें एक तरह से सबलिमिनल बताया जाता है कि भाई एक अनसेड थिंग है कि आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है. बट आई फाइंड कि जैसे अगर आप जैसे जैसे ज्यादा दुनिया में आगे जाते हो या आप और डिस्कवर करते हो लोगों को, तो यू फाइंड कि आप अपने पेरेंट्स जो आप रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स में देखना चाहते हो, आपको किसी और XYZ पर्सन में भी मिल सकता है. हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में वो क्वालिटीज नहीं है जो उनको जो हमारे लिए एक होता है ना कि भगवान का स्वरूप है वो, या वो इस तरह के हैं जिनको रेवर किया जाए, ऐसी क्वालिटी हमें नहीं दिखाई देती कभी कभी उनमें, पेरेंट्स में. हाँ, बहुत चीजें अप्रिशिएबल है कि उन्होंने हमारे लिए किया, लेकिन जो गुरु जिसका स्थान देना चाहिए, जो वो हो सकता है आपको पिता में ना दिखे. तो जैसे इन माय केस आई फाउंड कि जैसे आचार्य जी में वो मुझे वो व्यक्तित्व दिखा जो रेवर करने लायक है. तो मैंने जब अपने घर वालों को वो नहीं ओहदा दिया, मैं मतलब अनसेड वे में, ये नहीं कि बोल के कि नहीं नहीं आपसे ज्यादा वो अच्छे हैं, इस तरह से नहीं, लेकिन अनसेड वे में कि मैंने उनको किया ही नहीं, उनको उस तरह से नहीं देखा. तो मेरे पेरेंट्स ने ये थोड़ी ना कहा कि देखो हमें ऐसे, क्योंकि मुझे उनको भी पता है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, और अगर मेरे बच्चे को अगर मेरे में वो चीज नहीं दिखती है और किसी दूसरे इंसान में दिखती है, लेट इट बी, ठीक है वो. तो इन माय पर्सनल केस ये हुआ. तो या दिस इज व्हाट आई वांट टू से. Thank you, Samba. Anyone else? So I just want to invoke reflection on that.
there is a person in front of me. I have a past associated with that person. Okay, the role that person plays maybe in my life. Now that person is not showing anything that is respect worthy, but I am compelled to respect that person. Why? Because ये मेरे माँ है, ये मेरे बापू हैं. How do you feel in that compulsion? मतलब ऐसे मुझे तो वैसा होता है कि मैं मतलब गिल्टी होता है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती, मतलब गंदी बेटी हूँ क्या. हाँ, मैंने सोचा नहीं कि ना कर भी सकते हैं. महिमा, इमेजिन करो कि जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया कि माता पिता की रिस्पेक्ट करनी. भूल जाओ, इरेज योर मेमोरी कंप्लीटली. भूल जाओ जो किताबों में पढ़ा है, भूल जाओ जो एथिकल मोरालिटी ने बताया है. 1 मिनट के लिए. आई थिंक यू कैन डू इट. हाँ, हम कर सकते हैं ऐसा. सो रोल प्ले दैट यू हैव नेवर बीन टोल्ड दैट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड यू हैव नॉट इवन बीन टोल्ड हु टू रेस्पेक्ट. कुछ नहीं बताया गया आपको. So would you still feel that guilty thing that you were sharing? नहीं शायद, पर वो मेमोरी ऐसे इरेज नहीं होती. हाँ, इरेज तो नहीं होती, लेकिन वो होती तो हमारे हाथ में ही है ना. मेमोरी है ना, तो उसको इरेज नहीं करना. मेमोरी है. मुझे दिख रहा है कि मेरे को सोसाइटी से ये ज्ञान मिला है कि माता पिता की रेस्पेक्ट करो, बट मेरे पास एक समझ भी है, इंटेलिजेंस भी है ना, जिसका मैं यूज करती हूँ पता करने के लिए क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए नहीं सही है. जैसे आप बता रहे हो कि मेरे लिए ये अलोन रहना बहुत जरूरी है, एंड आई वांट टू ट्राई इट. तो ये आपकी समझ से आ रहा है. तो माना मेमोरी नहीं इरेज होती, हमें मेमोरी इरेज नहीं करनी, रखी है मेमोरी बगल में, बट उसको यूज तभी करो जब जरूरत हो. ये नहीं कि वो इतनी हावी होके हमारे ऊपर बैठ गई है कि बस वही हमें रन कर रही है, हमारी अपनी समझ नहीं काम कर रही उसके सामने. नाउ आई एम नॉट सेइंग वी मस्ट नॉट रिस्पेक्ट. I am saying that if respect is an obligation, it's a torture, it's atrocity. वो मेरे माता पिता को भी एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज होने का मौका नहीं देगा. कि अगर आप रावण को रेस्पेक्ट करते रहो, हाँ, ये बोल के रावण कि तू तो मेरा बापू है. आप देखो ना, पुराणों में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं. नचिकेता है ना, एंड देन ये प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का बेटा है ना प्रहलाद. सो हिज डैड वाज असुर, है ना. अब उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो रेस्पेक्ट वर्दी हो. तो उसने क्या किया, उसने उसके जो जो वो कर सकता था अपनी समझ के हिसाब से, प्रहलाद वो करता गया अपनी समझ के हिसाब से. वो ये अगर गिल्ट में आ जाता है, मेरे पापा तो बहुत बढ़िया, मेरे तो पापा है, मैं इनके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ, इसको तो अ, मार मार दिया जाएगा, जो भी है. तो वो तो सच का कभी सच की जीत नहीं हो पाती ना. तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि झूठ की जीत हो, चाहे उस झूठ ने मुखौटा पहना हुआ है मेरे माँ और बाप का, या आप चाहते हो कि सच की जीत हो? क्योंकि अगर मैं झूठ का साथ दूंगी, अगर मैं उस चीज को रेस्पेक्ट दूंगी जो भी एक्चुअली में रेस्पेक्ट वर्दी नहीं है ना, होता क्या है कि हम उस बंदे को चेंज होने का मौका ही नहीं देते. क्योंकि आप उस बंदे को क्या बता रहे हो, तू जहां जा रहा है तेरी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, तुझे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो आप उसका हित कर रहे हो या अहित कर रहे हो, बताओ, सोचो. अगर आप कहते हो मैं अपने मम्मी पापा को लव करती हूँ, आई वॉन्ट टू केयर फॉर देम, वुड इट बी केयरिंग फॉर देम इफ यू आर नॉट इवन seeing that they are not in the right place and not even telling that they are not in the right place? ऐसे दोस्त का होने का क्या फायदा? मम्मी आपको बैसाखी बनाना चाह रही है और आप कह रहे हो हाँ मम्मी बनाओ बैसाखी. क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारी बेटी हूं, तुम जितने अत्याचार करना चाहती हो तुम कर सकती हो. क्यों? क्योंकि तुमने ही तो मुझे पैदा किया है माँ. ये देखो जरा ड्रामा पूरा जो हम करते हैं. और इसमें आपको लग रहा है आप प्यार कर रहे हो मम्मी से, लेकिन क्या आप हित कर रहे हो मम्मी का? नहीं कर पा रहे ना. और मम्मी का हित किस में हो सकता है? मम्मी का हित इसमें हो सकता है, मम्मी हम सबको अकेले रहना सीखना है.
तो ये समय मैं अकेले गुजारती हूँ, ये समय आप अकेले गुजारो। देखते हैं हम उस अकेले समय में क्या क्या अपने साथ कर सकते हैं, किन चीजों में अपने आप को अच्छी चीजों में ऑक्यूपाई रख सकते हैं। मेरी मम्मी मुझे ना कुछ टाइम पहले फोन करती थी, और बहुत सालों की बात है, अब तो खैर ईयर्स बैक। और मम्मी फोन करके ना कुछ कुछ इधर उधर की बातें बताती थी। आई हैड टू टेक अ स्टेप एंड आई हैड टू टॉक टू माई मॉम, मम्मी ये बात चलेगी नहीं, मुझे नहीं सुननी ये बातें। अब लगता तो हर्टफुल है ना, ईगो को हर्ट होती है कि मेरी बेटी और मेरे को मना कर रही, बात नहीं करेगी मेरे से। हिम्मत देखो जरा इसकी। आप मानोगे नहीं कि मुझे उससे इतना फायदा हुआ, मेरी एनर्जीज गलत डायरेक्शन में नहीं लगी, और मम्मी को भी बहुत फायदा हुआ, और मम्मी ने अपने आप ही धीरे धीरे वो गॉसिपिंग छोड़ दी। तो अब मम्मी का हित हुआ कि अहित हुआ, आप देखो, और मेरा भी हित हुआ। तो हम कहते हैं जिसको कि हम प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स को, प्यार तो ये चीज है ना कि हम एक दूसरे का हित चाहें। ये क्या कि एक दूसरे को वीक करके, एक दूसरे की बैसाखी बन के आप प्यार कर रहे हो, है ना। तो इस पे थोड़ा सोचिए, जरा देखो, विचार करो इस पे। जो आप अपने लिए कदम बढ़ा रहे हो, अपने आप को एक्सपैंड करने का, अकेले रहने का, वो मम्मी को भी तो समय मिलना चाहिए ना, कि मम्मी वीक रहे और मैं स्ट्रांग हो जाऊं, महिमा है बड़ी सेल्फिश हो। या एनीवन हु वांट्स टू शेयर, या तरु? आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वन थिंग बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन का मुझे फील हुआ कि रिस्पेक्ट ना करने का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है ना। जैसे आपने जो अपना एग्जाम्पल शेयर किया, आपने नचिकेता प्रहलाद के जो नाम लिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे जा कि मैं तेरे को माँ नहीं मानता, बाप नहीं मानता, एंड यू पुट कीचड़ ऑन देम। what basically what I felt what you were saying was that if you feel something is right for you should do it, you should take a stand and do it, दो बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं कि अरे ये तो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, उसमें हम खुद को मार देते हैं, खुद को भी सफोकेट, वी पुल आवरसेल्व्स बैक कि नहीं नहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगेन इट डजंट मीन डिसरिस्पेक्टिंग, बट इट जस्ट मीन्स कि बिकॉज उनसे तो प्यार करते हैं बट अपने से बहुत ज्यादा और प्यार करते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप्स, एज इन we need to respect ourselves as well, and if something is not in agreement with what I feel is right for me right now, वो उसमें फिर हमें स्टैंड लेना चाहिए। बस एक ये जिससे ये ना लगे कि एक थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप था। But बिल्कुल। otherwise, I remember, Mahima's last sharing also. It was it's so beautiful to see कि कितनी लाइफ है और कितना जैसे कितनी श्योरिटी कि आई नो कि मुझे इधर भी पुल हो रहा है, मुझे उधर भी पुल हो रहा है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, और मुझे दिख भी रहा है कि मुझे वहां जाने में जो दर्द हो रहा है और जो चैलेंजेस आ रहे हैं, like to be in so much awareness is really beautiful. I hope you realize that ये चीज। और महिमा एक और चीज कि लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे डू स्टफ, इट अपीयर्स दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे मूवीज में भी हम देखते हैं कि अरे ऐसे ऐसे करके, बट रियल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। इवन like I've heard people who are like big speakers who speak in front of 10,000, 20,000 people. Before that they also have some anxiety and they have to win it. They have to say कि it's there, it's fine, but I have to do what I have to do. तो जो आप शेयर कर रहे थे कि ये जो मूवमेंट्स अंदर होती हैं कि हिचक, चैलेंजिंग, ये सब मतलब टू ऑब्जर्व देम इज सो ब्यूटीफुल, और ये सबके साथ होता है। इट्स जस्ट I wanted to basically tell you, and I mean, you didn't ask, but it's again nice to just acknowledge that that's part of being human, kinds के कोई अरे जेम्स बॉन्ड नहीं आते कि बस गाड़ी उठाई और वो करा। एंड आई लव हाउ यू पुट बाउंड्रीज, कि उनको ये लगता है, मुझे ये लगता है, मेरे लिए जरूरी है। और प्लस अभी मैंने जो सुना, यू सेड कि वो चाहती हैं कि मैं आपके उनके साथ रहूं, और फिर वो मेरी शादी करा देना चाहती हैं, पर जब मैं अकेले जाने की बात करती हूँ तो वो कहती है तो मेरे साथ रहो। अगर आप इसको देखो तो समवेयर देयर इज अ मैनिपुलेशन कि बस बच्चा सेफ रहे, चाहे कुछ ग्रो हो चाहे नहीं हो, बट आसपास रहे, और उसके बाद बस शादी हो जाए और देन सेटल हो जाए, बट एवर दैट सेटलमेंट मीन्स, बिकॉज मैंने तो किसी को सेटल्ड आज तक देखा नहीं।
that it's amazing if we remove the emotions and see the facts for fact. तो काफी वहां पे कुछ चल रहा होता है. So it's yeah. So thank you. थैंक यू तरु एंड मोनिका. हाँ, मतलब मुझे उन्हें ऐसे उनकी वीकनेस की एनेबलिंग नहीं करनी. हाँ, मैंने नया एनेबलिंग पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ आजकल मैं. तो मैंने बोल दिया, मतलब वैसे नहीं होता कि रिस्पेक्ट भी नहीं करते और डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते, नहीं आता. मैं या तो उधर जाती हूँ या फिर मैं सीधा से झूले की तरह जाती हूँ. वो बीच में आना है. हाँ, मतलब मैं रिस्पेक्ट करना छोड़ूं तो मैं डिसरिस्पेक्ट करने लग जाती हूँ. महिमा, इसमें ना बड़ा मजा आता है. दिस थिंग इज सो इंटरेस्टिंग. दिस इफ वी टेक लाइफ एज दिस एक्सपेरिमेंट, लिटिल एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, वी हैव टू गो थ्रू डिस्कम्फर्ट्स, है ना. जस्ट लाइक यू आर शेयरिंग दैट हिचक भी हो रही है लेकिन करना भी है, दैट इज अ डिस्कम्फर्ट, सर्टेन अनईज दैट यू हैव टू go through. Just like that, parents also or other people around you also have to go through some kind of a discomfort. क्योंकि the only reason of discomfort is आदत नहीं है. आदत नहीं है कि बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है और तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो. उस चीज की आदत नहीं है. आदत को डेवलप होते हुए कितना टाइम लगता है? ज्यादा नहीं, है ना. और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी सहना पड़ता है. अब अगर मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ पीनी, तो मुझे आदत नहीं है कि मैं 100 के बिना कैसे रहूं. मुझे आदत नहीं है कि मैं 50 के बिना कैसे रहूं. इसलिए मुझे हल्का फुल्का उथल पुथल सहनी पड़ेगी. क्यों सहनी पड़ेगी? क्योंकि मैं सहना चाहती हूं. क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए शुभ है, मेरे लिए बहुत अच्छा है. तो अगर हम खुद अच्छाई की तरफ जाते हैं, एक्सपैंडिंग अवर होराइजन, वाइडनिंग अवर लाइफ, डूइंग व्हाट फील्स राइट, तो ना चाहते हुए भी आप दूसरे का अच्छा ही करोगे. बेशक उस अच्छे में उस अभी दूसरे बंदे को हर्ट फील हो रहा है, उस दूसरे बंदे को लगा कि ये मारा इसने मेरे मुंह पे. बिल्कुल पढ़ने दो, पढ़ने दो. और पढ़ पढ़ के ही धीरे धीरे अक्ल आती है कि जो हुआ ठीक हुआ. बच्चे ने कम से कम जीवन जीना तो शुरू किया. उसको उस खुलते हुए जीवन को देख के, जैसे एक फ्लावर ब्लॉसम होता है, एवरी person is touched by a flower blossoming. Just like that, even your parents, it is not possible that they would not be touched by your life blossoming, owing to the fact that there may be discomforts and ups and downs. Just allowing them all to be and taking baby steps in the right direction, that is really beautiful, and we deserve that beauty in our life. या एंड थैंक यू तरु, व्हाट यू क्लैरिफाइड कि रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कि जाओ तुम होगे किसी और के माँ बाप, मेरे नहीं. नॉट लाइक दैट. या there can be a neutrality, and I understand Mahima when she said that I am like a pendulum, abhi idhar se udhar, because I have been through that pendulum like state also. So allow yourself to go through that, pendulum, and then you will arrive definitely at a right kind of a balance that you are looking for. Yeah. Thank you for sharing. So anyone else, whenever you feel ready, whenever you have anything to share, we are not sitting here to order, pass any judgment here. It's a very friendly, frank reflective space, and you are most welcome to share whenever you feel ready. And one more small thing that's coming to me is जैसे it's like we say कि बच्चों को we should give space because they are learning to learn new emotions, and they don't right now know how to handle this, handle that and stuff, and it's a new thing for them. अभी शुरू किया है. तो I feel उसी हिसाब से parents का भी जन्म होता है ना, like people are not born as parents. So there are certain things they have just picked up, है ना. कोई चीज किसी मूवी से देख ली, कोई चीज अपने पेरेंट्स से देख ली, कोई नेबर से देख ली. जो चीज हमें लगा कि हाँ ये अच्छी है, उसे हमने उठा के बोला कि हाँ हमने अपने बच्चे को इन सारी
संस्कारों में और इस हिसाब से पालना है. बट देन व्हेन समबडी टेल्स अस कि नहीं नहीं यू नो ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मतलब मुझे तो थोड़ी फ्रीडम चाहिए, देन मतलब इट्स इट्स शुरू में आई थिंक जैसे यू सेड हैबिट की बात, इट कुड बी शॉकिंग, बट देन इट्स गुड फॉर एवरीबडी टू फील कि हाँ अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है. तो दैट आई फील कि भाई गिविंग बर्थ वाली की जो स्पेस है कि अच्छा हाँ, आपको शायद नहीं लगता होगा बट मेरे को लगता है कि दिस इज जरूरी, एंड आई वुड वांट टू डू दैट, एंड आई नो आई वांट दैट. तो वो भी एक जरूरी चीज लगती है. एक Hello. Yeah, Shivam, you want to go first and then Sambhav can go? Okay. So I just wanted to share something. Like you know, कुछ दिनों से मैं ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ that my mom is very much workaholic. मतलब घर पे she like she keeps on doing lots of stuff. She's very good at everything, but she's like continuously working. Office ka work as well and घर का work, everything from cooking, washing, and lots of other daily things. तो I kind of sometimes feel guilty कि वो इतना काम कर रहे हैं, but you know मेरे मेरे पास भी होता है कुछ काम करने को, but समटाइम्स आई फील लाइक उन्होंने मुझे कुछ बोला करने को, एंड अगर मैं उसको 10-15 मिनट तक 10-15 मिनट्स आई डिडंट एग्जीक्यूट दैट थिंग, तो शी स्टार्ट्स डूइंग इट हरसेल्फ. सो मुझे उस चीज का गिल्ट होता है कि मैं मतलब ड्यू टू माई ओन लेजीनेस आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू support her much, and and she also you know uh, although she never says something or tell me something, but I just feel some kind of guilt from that और मुझे पता है कि ये मेरी ही खुद की ही इसके अंदर थिंकिंग है, बट I could be more active and more supportive at home, and yeah, so it's just an observation, and yeah, that's it, I think. I want to say something. शिवम, क्या है कि जैसे पेरेंट्स जो हैं दे आर अडेप्ट एट डूइंग वर्क, और ये इसका एग्जांपल ये है कि भाई इट्स वेरी एविडेंट क्योंकि दे हैव मेड देमसेल्फ स्टेबल इन लाइफ एंड दे हैव वर्कड हार्ड. लेकिन हम जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कि माय पेरेंट्स डिड ऑल द वर्क, ठीक है, और मैं उनको हेल्प करने की बजाय आई वाज बिकमिंग वेरी लेजी, जस्ट लाइक यू सेड. तो उससे क्या हुआ कि मेरे को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मेरी वर्किंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाई. तो इट्स मोर लेस अबाउट कि भाई उनको दिक्कत होगी या उनको कोई प्रॉब्लम है कि आप बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा. हमें बेटे को बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे जाके कि उसको वर्किंग हैबिट डेवलप नहीं हुई. जैसे घर में छोटा छोटा काम आप नहीं करोगे या हो सकता है फिर आप बिल्कुल ही लेट बैक हो जाओ कि भाई सारा काम ही वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब दिस इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके साथ है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि हमें काम करना है, अपने इंडिपेंडेंट होना है. लेकिन अगर सारा ही काम पेरेंट्स करते रहे तो दिस माइट लीड इनटू दिस कि भाई आप बिल्कुल ही लेट बैक हो जाओ. दैट्स ऑल. Right. और ये मैंने को before lockdown I was living alone somewhere in a PG. So I was doing lots of I was doing all of my daily chores myself. तो जब लॉकडाउन हुआ घर पे आया, so it was very slight contrast. तो शुरू शुरू में तो आई वाज वेरी एक्टिव, बट धीरे 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 आई फिट इन दैट रिदम कि मुझे पता है कि घर पे और लोग हैं तो ये काम तो हो ही जाएगा. आई एम लाइक दैट. राइट. तो हाँ, बट अगर वहां पे इफ यू लिव अलोन, सो यू आर कि नहीं और कोई नहीं है, मुझे ही करना है. राइट. तो या चाहे उसको थोड़ी काम को लेट करो, बट वो करना तो तुम्हें ही है ना. तो घर पे भी राइट. राइट. या सो it's basically habits, I think.
Right. मेरा भी सेम, बिल्कुल सेम है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत वैसे हैं, और मेरी मम्मी भी अगर 10 मिनट तक ना करो जो उन्होंने काम बोला है, तो ऐसे मैं ही कर देती हूँ, रहने दे, तुझसे नहीं होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं भी 2 महीने लॉकडाउन में अकेले ही रही थी, तो फिर मैंने काफी सब कुछ ही किया, ऑफिस भी किया, घर भी किया, और फिर मैं घर चली गई। जब फ्लाइट शुरू हुई तो मुझे बहुत गंदी फीलिंग आती थी कि सब कुछ मम्मी कर रही हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि अब वो जब बोलेंगी मैं तुरंत कर दूंगी, मतलब जैसे वो बोलेंगी मैं जल्दी से कर दूंगी, वो कुछ बोल ही ना पाए। पर फिर जैसे ही मैं काम करती थी तो मम्मी, अरे मेरी लाडली बेटी क्यों कर रही है काम, तो कुछ उल्टा हो जाती थी। मतलब उन्हें खुद काम ही करना है सारा, पर वो बोलना रहना चाहती हैं कि देखो मैं कर रही हूँ। फिर मैंने कह दिया कि आप चाहते हो कि करूँ या नहीं करूँ। फिर हमने काम ही बांट लिए कि ये बर्तन मेरा है और रात के 12 बजे तक हो जाएगा, विच इज लाइक डेट चेंज होने से पहले, उससे पहले मैं नहीं करूंगी। तो मैं रात को ही 11:30 बजे बर्तन धो रही होती थी। पर फिर मैंने ढंग से बात कर ली। पर हाँ, मेरी मम्मी भी करती हैं, वो जल्दी से इसलिए ही कर देते हैं क्योंकि उन्हें खुद को आदत है, मतलब उन्हें खुद ही करना है। मतलब मेरे मम्मी पापा को तो ये उन्हें करना ही खुद है, बस उन्हें साथ साथ सुनाते रहना है कि देखो हम कर रहे हैं, तुम कुछ करते नहीं हो। Smriti, you have unmuted. Are you planning to, do you want to share something? एक्चुअली सारे इस बारे में बात कर रहे थे, सो आई गेस मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो living in a joint family means living with your chachu, living with your dadi, living with your mom and papa. So I don't have anything to do, and everything is out there. And I have been living away from my home for past 6 years, and I came back home last year. When this COVID situation started, and it has been like a year for me. और बहुत डिफिकल्ट हो गया है। लाइक आई नाउ फील दैट अगर मुझे 6 साल तक आप काम कर रहे हो, आप अकेले हो, आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो, बट आप अचानक से घर आते हो। And when I think going back to atmosphere where I have to do everything all alone, be by myself, that thought is very scary for me. I had a very loner personality. I was okay being alone. I was okay being alone with my thoughts. I was okay being with myself. But now when I think about it, the idea is scary, which I don't want to be like that. It is like a transition hai, which I'm not appreciating in a way, because आदत कह लो, I don't know what is happening, and I'm not able to identify the cause that why is it happening. I'm not doing anything. I have a very laid back attitude. I woke up, I do my work, I work, and the working hours are very extensive. So like I'm working, and then when the work is over, I'm either scrolling through YouTube, or I'm watching some anime, or I'm watching some shows. And okay, then it's dinner time, and I'm eating. So my daily routine includes waking up, doing my job, which ranges from 8 to 9 hours, then watching YouTube videos, which I'm not appreciating. Like I have lost my creative side. I have lost a part of myself, which I appreciated a lot. And this is giving me a lot of anxiety. And when I'm alone, I think those things. And that is why I'm always looking for stimulus that drives me away from this kind of thoughts. Ki, theek hai, okay, I'm doing something wrong. So no, what's something that तुम्हारा mind engage हो, तुम्हें पता ही ना हो. So I'm living inside my thoughts, or I'm living something which is not reality, and I'm not able to streamline. I know what I'm saying, but it's just too much to figure out, too much to, yeah. So and that's it. I'll stop here. Thank you for sharing. Thank you so much. Yeah, Taru, you want to share? एक्चुअली जिस पॉइंट पे पहले शुरू किया था, आई स्टार्ट विद दैट। ये सबने, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दे कुड सी कि समहाउ पेरेंट्स ने करना खुद है।
I also feel like अपने में भी मुझे कई बार दिखता है कि it feels like a disease, a bit of it, कि I want help, but yet I'm not be able to give space to the other person to help me in their own time. And it's like before, okay, I'll wait for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, then I'll be like, to rehne de, I'll only do it because I want to get it done in a specific period of time. तो उस केस में मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ में उनको करने ही देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग ऑन द गिल्ट, मतलब ना कि ठीक है ये करना है, एंड लाइक when it's so much in conditional, it has to be done this way and this much time. Lot of times, especially with elderly as well, I've seen that they want things but they are so particular about how it has to be done कि helping them is not fun, and they are rather happier doing it themselves, and yet they want to make a big deal out of it कि मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही करती हूँ, but उसमें भी आई ऑनेस्टली सीन कि उनको प्लेजर ही आ रहा होता है. तो मैंने तो बेसिकली ये सारा देख के आई तो जस्ट स्टेप बैक टाइप ना कि इफ आई कैन डू समथिंग, इफ आई वांट टू आई डू, अदरवाइज आई हैव स्टॉप्ड फीलिंग बैड इफ आई कांट डू इट, बिकॉज अगर इतनी जल्दी है और इतना पर्टिकुलर है तो आई थिंक इट्स ऑल राइट इफ दे वांट टू डू इट, बट देन आई डोंट गिव देम दैट थिंक कि हाँ व्हेन दे से कह रहे हैं हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो फिर मैं अंदर से सोच देती हूँ आप करना भी तो चाहते हो, आई डोंट टेक ऑन गिल्ट और एनीथिंग. तो आई गेस ये बेस थोड़ा सा मेरे को ऐसे आ रहा था व्हेन आई Taru, वाज. एक और, you shared very beautifully that it's okay to step back, because when the other person is not giving you that space कि अपने तरीके से कर सकते हो, it's very important to save your sanity, तो हम अपने आप को परेशान करके फिर भी लगे हुए हैं कि नहीं मैं तो माँ हूँ या बच्ची हूँ, मुझे हेल्प करनी है, वो बेवकूफी है, बिल्कुल बेवकूफी है. एंड द अदर थिंग इज द अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट कंपेल्ड. he may feel that I am compelled, मैं क्या करूं, मेरे ही ऊपर सारा काम है, but then you are also there, the other person can ask you for help. मुझे लगता है एक कैच और है यहाँ पे, गिल्ट वाला कैच, जो उस पे मैं थोड़ा हल्का सा रिफ्लेक्शन चाहूंगी. it's not that मुझे जो गिल्ट अराइज हो रही है, मुझे गिल्ट इसलिए नहीं अराइज हो रही कि मैं मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर पा रहा, नहीं. मुझे लगता है वो गिल्ट इसलिए आ रही है कि क्योंकि आप जो समय है आपके पास, उसको आप जहां लगा रहे हो, आपको पता है वो टुच्ची जगह है. सो मम्मी काम कर रही हैं, तुम यहाँ पे यूट्यूब पे सर्फ कर रहे हो, जो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो दैट गिव्स राइज टू गिल्ट. Imagine that mummy is working at home, dad is working at home happily because they don't want much help from you, and you have given yourself to some work which is really worth doing. You want to do that work. मुझे नहीं लगता गिल्ट की कोई भी जगह होगी वहां पे. द थिंग इज कि हम इतने वेले हैं, हम इतने वेले हैं और हम अपना टाइम इतनी गलत जगह पे लगाते हैं कि हमें खुद अंदर से शर्म आ रही होती है, और वो शर्म जो है वो गिल्ट को राइज देती है कि कम से कम मैं हेल्प ही कर लेता मम्मी की, कि अपना समय कहाँ लगा दिया ये. तो अंदर ना अंदर हमें कहीं पता होता है कि हमारा समय सही जगह नहीं लग रहा है. तो जिस तरह से वो नहीं रुक पा रहे हैं, कंपल्सिवली काम करे जा रहे हैं, उसी तरह मैं भी नहीं रुक पा रही हूँ, जानते हुए भी कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है. इट इज पुटिंग मी इन अ really lower, pulling me down. Still I am going through those series on Netflix or YouTube or whatever. I'm not saying that there is anything wrong with YouTube, but what are you watching on YouTube? What are you watching on YouTube? Is it really expanding you, widening your horizons, or is it narrowing you down and pulling you down in your consciousness? ये चीज अगर हम देख लेना, मुझे लगता नहीं है कि गिल्ट की जगह बचेगी अगर आप उस बचे हुए समय को सही जगह पे लगा लें. That's what I feel, क्योंकि personally if I see that there is someone else taking care of some stuff, and if I am putting myself at a worthy place, I have no space for guilt. So what do you think, about this? Any reflections are welcome. ये मुझे काफी अच्छा लगा. मतलब मेरी गिल्ट, सॉरी शिवम, उसके बाद बोलना, मेरी गिल्ट अपने आप चली गई थी जब मैं कुछ अच्छा करने लग गई, पर मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि गिल्ट जाए. अभी मैंने नोटिस किया जब मैं घर रह रही थी, अब मैं वापस घर से बाहर आ गई,
हमको लगा इससे पहले दूसरा लॉकडाउन हो और 6 महीने फंसो निकलो जल्दी। पर हाँ, मतलब मेरी गिल्ट 1-2 महीने रही, फिर मेरी गिल्ट चली गई कि मैं घर के काम इतने नहीं करती जितने मुझे करने चाहिए। और वो चाहिए भी मेरा ही बना हुआ था। वो चली गई क्योंकि मैं कुछ बढ़िया चीजें करने लग गई। हाँ, तो थैंक यू मोनिका तरु। I just want to say कि ये एक तो चीज आपने राइट बताई कि गिल्ट में भी इस वजह से हो सकती है क्योंकि जो हम चीज कर रहे हैं वो उतना वर्दी नहीं लग रहा हमें, तो गिल्ट हो सकता है, उस चीज की वजह से हमें गिल्टी फील हो सकता है। बट सेकेंडली आई फील कि इसका एक और कंपोनेंट भी है कि यू नो देर इज सम काइंड ऑफ डिग्निटी इन डूइंग योर लेबर। और कभी कभी लाइक छोटे छोटे टास्क ही, लाइक जो अपने टास्क होते हैं, सो कॉल मुंडेन टास्क, तो उनको भी अगर हम खुद करते हैं तो वी फील सम काइंड ऑफ बेटर कभी कभी कि अच्छा हम कपड़े तय लगा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा छोटा काम कर रहे हैं तो कभी कभी अच्छा लगता है वो काम करके। तो सेकेंडली आई थिंक वो चीज भी है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज वी नो दैट कि ये काम कोई और कर रहा है एंड कोई और कर रहा है, लाइक जो सारे घर के काम हो रहा है उसमें ही वो हो जाएगा काम। तो आई थिंक ये सेकंड एस्पेक्ट है कि इस वजह से भी थोड़ा सा गिल्ट अराइज हो रहा है कि हम हमारी अपनी जो डेवलपमेंट को लाइक थोड़ा सा लिमिट कर रहा है कि तुम खुद लाइक इंडिपेंडेंटली अपने काम नहीं कर पा रहे हो। सो या दैट्स इट। या थैंक यू फॉर शेयरिंग शिवम। पता है मुझे लगता है कि हमें ना हर समय इट्स लाइक अ कांस्टेंट चॉइस दैट वी हैव टू मेक। हर मोमेंट मेरे पास एक चॉइस है, कहाँ पे मेरे को छोटा और वीक लग रहा है, कहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट और सशक्त लग रहा है, एक्सपैंडिंग लग रहा है। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच मोमेंट। अगर आप देख रहे हो कि मुझे जब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ मम्मी काम करके जाए उसमें मेरे को बहुत ही वीक फील हो रहा है और बहुत ही अजीब सा गिल्ट भी आ रही है, शेम भी आ रही है। वाई ऑन अर्थ वुड आई चूज दैट स्पेस फॉर मी? इसी को ही सेल्फ लव कहते हैं। दैट आई लव माई सेल्फ सो मच दैट आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस गंदी स्पेस। जो महिमा भी कुछ गंदी फीलिंग की बात करी थी ना, कि गंदी स्पेस में नहीं रहना मुझे। सो गेट अप एंड मेक योर लाइफ वर्थ इट ईच मोमेंट। कौन रोक रहा है? रोक तो नहीं रहा ना कि मम्मी मना कर रही है, शिवम मत उठ बेटा, खबरदार जो तूने कपड़ों को हाथ लगाया और फोल्ड किया, ऐसा तो मम्मी नहीं कह रही। बट तुम ही हो जो अपने हाथ बांध के भी पहले बैठे हो और फिर ऊपर से गिल्ट भी ला रहे हो, उसके ऊपर लाद रहे हो, जैसे एक कीचड़ के ऊपर दूसरा कीचड़। लो लो शिवम, ये तुम्हारी डेकोरेशन, दिस इज योर टॉपिंग। ये हम अपना खुद ही हाल कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। So just look at this amusing thing that we do to ourselves. This is very funny, hilarious. राइट। Yeah. Taru, you wanted to share something. Just a small comment, when Asambhav and Shivam were discussing, मतलब मुझे भी ये लगता है कि जब हमारे ऊपर आता है, लाइक शिवम वाज सेइंग दैट जब मैं अकेला रहता था आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, महिमा सेड द सेम, स्मृति सेड द सेम, है ना। तो मुझे लगता है कि इसलिए गिल्ट आना तो एक्चुअली थोड़ा मुश्किल है कि मैं अपनी डेवलपमेंट नहीं कर रहा छोटी चीजों के लिए, कि ऐसा लग रहा है कुछ और है जिसको हम उसके अंडर थोड़ा सा छुपा रहे हैं कि अरे इसमें तो मेरा ही हित है। And at times, like what you said was really beautiful कि हमें, because I am not spending it where I should be, सार्थक काम जिसे कहते हैं ना कि I am not doing, but sometimes even there's toxicity in people who don't want you to do stuff yet they want you to feel bad about it. एक ये भी एक एंगल होता है and then it's not deliberate, एक वो आदत ही उनको पड़ गई होती है कि बोलते बोलते करते करते बोलते रहने की कि मैं ही हूँ। और बहुत बार मूवीज में भी इस टाइप का मैंने देखा है, पर्सनालिटी दिखाते हैं तब तो हमें हंसी आती है, बट बिकॉज हम इतनी क्लियरली देख पाते हैं अपने घर पे, बिकॉज वो इमोशंस और ये जो गिल्ट का ये जो एक मिक्सचर होता है शायद वो नहीं हो पाता।
but yeah, that's it. Just Beautiful. I think that's really beautiful what you shared, ki there are people who would not let you do work and yet make you feel bad about it. Now what to do there? मुझे लगता है कि उस पे बारे में भी हल्का सा एक we can leave a pointer. I think we can use that as an opportunity कि उस बंदे ने ये तो बता दिया कि तुम वेले हो, कहीं ना कहीं उसे तुमने पॉइंटर कर दिया, तो क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपने समय को अच्छी जगह पे लगा सकता हूँ? बाकी बात भुला दो, बिल्कुल बाकी को नजरअंदाज कर दो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लए, थोथा दे उड़ाए। तो कबीर जी कहते हैं वी वांट सच अ वॉरियर who would just take the essence of the thing and leave all the funny part aside, the hideous part aside. So can I take just that thing as a pointer that that person tried to kind of put me in a position कि तू किसी काम का नहीं है, क्या मैं अपने आप को किसी काम का बना सकता हूँ? Can I use myself wisely? And what are those things which are wise in nature? Anything that expands us, anything that expands my horizons, anything that strengthens me, anything that makes me come out of my prison, which elevates me, uplifts me. These are the things, these are a few signals which we can use, where I want to put myself. Things of beauty, things of art, they expand us, they widen our horizons. तो अगर कुछ हम अपना समय, और हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम अच्छी जगह, हम सबकी एक नेचुरल इंक्लिनेशंस होती हैं, संभव में बी गुड एट समथिंग एल्स एंड शिवंग में वांट टू डू समथिंग एल्स, स्मृति में वांट टू डू समथिंग एल्स। कुछ ना कुछ हम सब में होता है जहां हम अपने आप को दे सकते हैं। तो क्या हम उस बंदे की नोकझोंक जो वो करता है हमारे साथ, उसको यूज करके अब अपने समय को एक ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जो हमें एक्सपेंड कर सकता है? क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है। हमें लगता है हम यंग हैं, 25 साल के हैं, अभी तो नहीं मरेंगे, मरते तो 80 साल वाले हैं। हाउ आर यू श्योर? डू यू रियली वांट टू स्पेंड अ लाइफ which is really half lived, half dead, calling yourself young people? सिर्फ बाल काले होने से तो कोई यंग नहीं होता ना, है ना? जान भी तो होनी चाहिए शरीर में, जीवन में जीने में जान होनी चाहिए। तो कैन आई लिव बिफोर आई डाई, using all the pointers that I may be having? Because it's really worth it. We deserve this kind of a life, full of full of enthusiasm, full of interest for life, not like half dead. We are in 20s already half dead. क्या जीवन है, धुतकार है ऐसे जीवन पे। इस समय पे अगर इंडिया की हालत होती फ्रीडम फाइट वाली, क्या हाल होता मुझे नहीं पता, क्या हाल होता। और हो सकता है कि ऑपरेशन की वजह से शायद हम जग भी जाते, ये भी हो सकता है कि इतना ऑपरेस किया जा रहा है कि चलो जग जाएं, कुछ तो करें जीवन का, चाहे फांसी चढ़ जाएं, कुछ तो करें। या one thing that I forgot to say, जैसे स्मृति ने जो शेयर किया था, it's like somehow जैसे एक हिल है ना, उस पे हमेशा ऊपर चढ़ना। और ऊपर we know ऊपर means there's a lot of beauty, right? Like when people go to for trekking, they climb mountains because the view is just beautiful, right? It, I don't know, expands something in you. और नीचे तो सभी रहते हैं, तो अगर हम देखें तो ऊपर चढ़ना हमेशा मुश्किल होता है और नीचे गिरना या जाना बहुत एक ऐसे लगता है कि एफर्टलेस है ना, जैसे एक बॉल का एक स्लिपरी स्लोप। तो उस हिसाब से व्हेन स्मृति वाज शेयरिंग, लाइक इट्स लाइक व्हेन वी स्टार्ट बीइंग अ बिट लेजी, और व्हेन वी जैसे अभी जो नॉन स्टॉप एक थोड़ा सा यूट्यूब या नेटफ्लिक्स का भी ना एक डेडनेस सी होती है उसमें, है ना? यू जस्ट सिटिंग एंड जस्ट प्रेसिंग नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड, और आंखें भी कई बार ऐसे दर्द हो रही होती हैं और
खराब सा लग रहा होता है, बट इट्स अगेन एन एडिक्शन. जैसे महिमा लास्ट टाइम एडिक्शन का इतना ब्यूटीफुल बोल रही थी, तो उसमें भी लाइक एक बार जब रियलाइज हो रहा है और अगर स्ट्रांगली हो रहा है, तो उसमें पुल आउट करने के लिए एक स्टैंड अप चाहिए होता है ना, कि जस्ट आई कैन सी where I was, I can see where I am, I can see where I am is not giving me happiness, है ना. मतलब engage तो हूँ, एक डेड पैटर्न्स फॉलो कर रही हूँ, बट अगर उसमें से निकलना है तो एक कॉन्शियस थोड़ी सी स्टैंड अप और एक सेल्फ रिबेलियन, है ना, अपने से रिबेल करके. बिकॉज यूट्यूब में भी आई थिंक आजकल वो सब आता है कि सेट अ रिमाइंडर एवरी 20 मिनट्स कि 20 मिनट्स का वॉचिंग टाइम है, उसके बाद इट विल टेल यू कि 20 मिनट्स होगा. तो यू कांट से कि अरे पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ चले गए. तो दो स्मॉल 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 थिंग्स, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, टू कम आउट ऑफ इट. that actually when she was sharing, that reminded me of that, that mantra na, that Asto Mawala, कि from take me from laziness to, that what is it? Tamso ma तमस sadgamaya. तमस से Tamas, हाँ, like tamas is that laziness, ना, कि मुझे वहां से यार tamas से, because tamas or laziness, just sitting and not kind of doing anything which is bringing anything, like even just sitting can bring joy, that's beautiful. but बस एक पड़े हुए जो हैं उससे निकालने के लिए, that's like again, that state is so इजी टू गेट, है ना. जैसे हम अपने ऊपर से वो हटाते हैं थोड़ा नियंत्रण या थोड़ी सी के व्हाट इज गुड फॉर मी, वो बस एक नेचुरल सा फील होता है कि यू एंड अप देयर. एंड इट्स सो नाइस टू सी दैट वन कैन फील कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऑल्दो इट्स ऑल कंफर्टेबल एंड इट्स सपोज टू मेक मी फील गुड, बट इट्स नॉट. ये जो आपने शेयर किया ना तरु, इसमें अच्छा नहीं लगना ना, इट्स अ ब्यूटीफुल सिग्नल. और बहुत अच्छा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप पड़े पड़े गल जाओगे, पता भी नहीं लगेगा, है ना. तो वो जो सेंस ऑफ गिल्ट है, वो बहुत एक शुभ संकेत भी है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई है जिसको ये समझ है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए. वो अच्छा नहीं लगना, अ सेंस ऑफ गिल्ट और शेम, कहीं ना कहीं हम में कुछ है जो जानता है कि मैं इससे बेटर जीवन जी सकता हूँ. तो क्या हम गिल्ट को, शेम को, या जो भी आता है हमारे अंदर, ये अच्छे नहीं लगने वाली फीलिंग, क्या हम उसको बस एक इंडिकेटर की जगह यूज कर सकते हैं कि ओके, नाउ गिल्ट हैज कम, इट मीन्स डेफिनेटली आई कैन बी एट अ बेटर स्पेस, एंड यूज इट जस्ट एज अ सिग्नल. जैसे लाल बत्ती सिग्नल होती है, आप लाल बत्ती को उखाड़ के खंबा लेके नहीं उसके साथ आगे ले चले, उसको उठा के, उसने अपना काम कर दिया, सिग्नल दे दिया, आप अब सुन लो सिग्नल. So I think it's really beautiful what you shared, and we can use that as a signal, that अच्छा नहीं लगना को use that as a signal to make life worthy. कि बहुत हो गया, अब कब तक मैं गलता रहूंगा यहाँ पड़े पड़े, कब तक, आखिर कब तक. और हमें लगता है कि परिस्थितियां हमें गला रही हैं. कोई परिस्थिति नहीं गला सकती हमें. लोग जेल में रह रह के भी ऐसा जीवन बना लेते हैं कि वो खुश रहते हैं जेल में. तो हम तो घरों में रह रहे हैं, हम तो एक इंटरेस्टिंग से जेल में रह रहे हैं. तो क्या हम अपनी जीवन का फिर से अगेन अगेन एंड अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, डू आई रियली वांट टू डू समथिंग ब्यूटीफुल विद दिस लाइफ, or do I really want this rotten kind of a monotone? Because we don't have much time. As a human being, we may think we have a 70-80 year of life. We don't have that. कब कौन सा डिजीज पकड़ ले, कौन सी बीमारी पकड़ ले, जब तक शरीर ठीक है तब तक तो उसका सदुपयोग कर ले. जब आएगी बीमारी तब देखेंगे, बट अभी तो कर लेना उपयोग. So it's beautiful that we can use these indicators of guilt, shame, feeling not worthy as a signal that yes, I can make my life worthy. Yeah, I deserve it. Yeah, just want to expand on what you said कि एक्चुअली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि कुछ हुआ, हमें गुस्सा आया, और उसके बाद हम 4 घंटे अपने ऊपर इरिटेटेड रहते हैं कि गुस्सा क्यों आया, और फिर अगले सुबह उठते हैं अरे यार कल मैंने अच्छा नहीं करा था. तो दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग दैट सिग्नल ऑन योर हेड, है ना. उसी हिसाब से जैसे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई विल स्टार्ट फीलिंग वर्स कि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या कर रही हूँ. मतलब आई कैन सी आई एम इन अ डिच,
And by staying there and brooding over it and feeling guilty, I'm just digging the dish deeper. But what you said was that guilt or that not liking factor should be taken as an indication कि अच्छा अच्छा मैं यहाँ हूँ, अच्छा let me see where I can move to from here, leaving the ditch and my situation in the ditch there. Because वो जो एक brooding होती है वो बस और नीचे ही ले जाती है, वो भी ऊपर हम जाते हैं बट वो काफी टाइम वेस्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं, बट वो टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं होता, लाइक यार. So anybody else who wants to unmute and share about this or anything they are going through, yeah, please feel free to do that and share. Thank you. एक और भी चीज होती है, मेरे जस्ट दिमाग में आया व्हेन आई शेयर्ड अबाउट दिस, दैट वी डोंट हैव मच टाइम, है ना, वी डोंट नो व्हेन डेथ अराइव्स इवन व्हेन वी आर यंग. कभी कभी हम इस चीज को बड़े गलत तरीके से ले लेते हैं कि अगर मरना ही है कल परसों तरसों कब मर जाए तो आज ही भोग लो, व्हाई डोंट आई पार्टी ऑल नाइट एंड व्हाई डोंट आई जस्ट नेटफ्लिक्स ऑल नाइट और वॉट एवर. लेकिन अगेन लिसनिंग टू अवर ओन इनर मूवमेंट्स एज एन इंडिकेटर, हमको ठीक नहीं लगता वो. अगर एक कोई बंदा सेंसिटिव है और वो बोले कि अगर 2-4 दिन की तो जिंदगी है, जी ले, पी ले जितना पीना है, फूक ले जितना फूकना है, we will not really feel expanded there, we will not really feel worthy there. So that can be again, that must be taken as an indicator कि इससे better कुछ हो सकता है उपयोग जीवन का. Each one of us is so unique. कोई भी एक जैसा बंदा आज तक पैदा नहीं हुआ, इतने बिलियंस गजिलियंस पैदा हो गए, even identical twins are not alike. Such uniqueness we have. So there must be something special I can be, I can blossom, which can be a gift to this life. Being your own true self, taking the stand that yes, I want to expand my horizons. इस तरह से जब हम expand करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत शुभ हो रहा होता है. और वो सिर्फ हमारे लिए शुभ नहीं हो रहा होता, एक जने के लिए जो शुभ होता है वो दूसरे के लिए भी शुभ होता है, बाय साइड इफेक्ट ऑफ इट. और अगर एक जना गल रहा है, एक जना रॉट हो रहा है, वो दूसरे के लिए भी अशुभ ही है. आपको अगर ये लग रहा होगा कि मैं अगर रॉटिंग हूं, 4 दीवारों में कैद कर लूं और मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला. दिस इज जस्ट एन इमेज, दिस इज नॉट रियलिटी. एक माँ बाप अपने बच्चे को गलता पड़ता हुआ देख के कभी खुश नहीं हो सकते, कभी भी, कभी भी. तो अगर हम अपने आप को ये मौका देते हैं एक्सपैंड होने का, टू लिव अ लाइफ दैट इज वर्दी लिविंग, तब कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अपने आसपास वाले लोगों के लिए. वी ऑल डिजर्व दैट ब्यूटी and we must go through all the discomfort, all the struggle required in order to live that life. बिना स्ट्रगल के तो कुछ नहीं है ना. इवन घर पे पड़े रहना, गिल्ट और शेम में रहना भी तो स्ट्रगल ही है ना. तो बिना स्ट्रगल के तो कुछ है ही नहीं. तो क्या कुछ ऐसी स्ट्रगल कर सकते हैं जो मे बी इट्स वर्दी, इट्स अ वर्दी स्ट्रगल. हाय. तो हाँ, मैं यही सोच रही थी, मतलब मेरा भी वो फेज था जब लॉकडाउन शुरू हुआ कि मैं रॉटिंग वाली चली गई हूँ. बहुत ऐसी कुछ खास तो कर नहीं रहे, और ऐसी फीलिंग आई कि ऑफिस में भी कुछ ऐसा नहीं कर रही कि बस मैं ही कर सकती हूँ. मतलब यहाँ भी इजीली रिप्लेसेबल ही है और क्या ही पर्पस है मेरा टाइप की. फिर मुझे एक चीज मिल गई जो ऐसे लगा सफरिंग वर्थ द सफरिंग है, और मतलब ये मेरा पैशन है और मतलब अच्छा है. पर वैसा लगता है कि मतलब ये सच में है ना, या मैं बना रही हूँ. मतलब ये भी बदल गया और इससे पैशन चला गया. मतलब
मतलब ऐसे सपने, मतलब मैंने एक टेड टॉक देखी थी जो बहुत अच्छी लगी थी, उसमें था स्टॉप सर्चिंग फॉर पैशन, अगर आज सुबह उठ के कुछ करने के लिए है दैट्स इनफ। और उस बंदी ने जो टेड टॉक दे रही थी उसने, मतलब सॉरी मैं थोड़ी गवार वाली लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, शायद एक वुमेन जो दे रही थी वो मतलब वो वैसे ही थी कि उसने काफी जॉब्स चेंज की हैं और वो कह रही थी कि जब भी वो जिस जॉब में थी वो खुश थी, मतलब पर उसे ऐसा कोई लाइफ लॉन्ग पैशन नहीं मिला, पर ठीक है, मतलब ऐसे उठने का रीजन था, मजा आ रहा था, तो वो है कि मतलब अब मुझे कुछ मिला हुआ है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट ऐसा लगता है कि इसमें इंटरेस्ट मान लो 6 महीने में खत्म हो गया, फिर से मैं यूट्यूब में जाऊंगी, शायद फिर से शायद नई चीज मिलेगी जो अच्छी लगेगी, पर फिर नेटफ्लिक्स, मतलब ऐसे ये सच में पैशन है भी है ऐसे, बस जैसे ना कि डूब रहे हैं और कोई ना कोई लाइफ बोट ही पकड़े जा रहे हैं बार बार, और मतलब ये काफी अलग टॉपिक शुरू हो गया, पर मतलब ये कई बार जो पैशन मिला भी है लगता है कि ये मैंने खुद को पागल तो नहीं बनाया हुआ कि ये पैशन है, मतलब हाँ। I think it's perfectly in alignment, first of all, Mahima, what you shared. Secondly, I am glad that you shared this because one may feel कि अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं तो पकड़ लो कोई पैशन जाके, है ना, और पैशंस तो चेंज होते होते रहते हैं, यू नो, अभी आर्ट का पैशन है, बाद में नहीं रहे, 2 साल बाद, हु नोज, है ना. इट्स नॉट अबाउट दैट, नॉट एट ऑल. इट्स अबाउट समथिंग दैट इज नेवर एंडिंग. हमने अपने आप को इतना बड़ा हाथ में पकड़ाना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता. What is that? So passion may be just a means कि अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा आई एम गिविंग सम टाइम हियर, बट द मीन्स is not an end in itself. Anything that we do in life is a revelatory process for my own self, कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मुझे अपने बारे में क्या बता रहा है. अच्छा, आज मैं अभी सब्जी बना रही हूँ, तो देखते हैं सब्जी के प्रोसेस से अपने बारे में क्या पता लगता है. अच्छा, आज मैं इस बंदे से इंटरेक्ट करने जा रही हूँ या ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, चलो देखते हैं क्या फियर उठता है मन में, क्या एंग्जाइटी उठती है, यू नो, क्या क्या होता है अंदर, क्या गेम माइंड ट्रिक्स चलती हैं. सो कैन वी टेक द होल लाइफ एज अ टोटल कंप्लीट एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन. Each and every passion or so called not passion is revealing something to me about myself. अब ये चीज ऐसी है जो आपको पूरे जीवन पर्यंत ऑक्यूपाई रख सकती है. इसमें आप ये नहीं बोल पाओगे क्या पता अभी इंटरेस्ट है कल रहे ना रहे, इसमें नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम इतने अनंत हैं, वी आर सो इनफाइनाइट that the movements in us are also infinite. We may look that we have a limited finite body, finite mind, finite thoughts and emotions. It's not like that. Face values deceive. तो क्या मैं, नो मैटर मैं क्या कर रही हूं जिंदगी में, हाँ वर्दी एम दे सको अपने आप को तो अच्छी बात है, कुछ वर्दी दे दिया, कुछ बड़ा दे दिया हाथ में, बट अगर वो वर्दी छूट भी गया, आप तो बचे हो ना. ये जो विशाल महासागर है अनंतता का, ये तो बचा हुआ है अभी भी, तो इसमें मूवमेंट्स तो अभी भी चलेंगी, कभी एंगर अराइज होगा, कभी फियर अराइज होगा. तो क्या हम अपने आप को ही अपना एक अजूबा बना सकते हैं जिसके प्रति हम इतने आकर्षित हो जाएं, टू फॉल इन लव विद अवर सेल्व्स, टू फॉल इन लव विद माई मूवमेंट्स इन लाइफ, टू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई मूवमेंट्स, टू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट ये होता क्या है मुझ में. नो, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा भटक गई, वाह. अच्छा, यूट्यूब अगर मैं 2 घंटे देख लेती हूँ तो ये हालत होती है मेरी, वाह. सो समथिंग लाइक दैट, टू बिगिन टू टेक माई ओन लाइफ एज अ वंडरमेंट. नाउ दिस इज नेवर एंडिंग. You will never be, you can never say that I am not occupied. You will forever have something to do, something to observe, something to investigate.
This is what I was pointing to at, and I'm very, very glad that you cleared it out for all of us. That it's not about picking up some one job or office or art or hobby, not like that. They keep on changing. You are so true that they keep on changing. अभी स्कूबा डाइव है, बाद में कुछ और होगा. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पकड़ा आपने. Right? Yeah, and anything else? Please share, anyone. Yeah, I'll just share a bit. मुझे personally, महिमा पहले आप बोलो, आप कुछ कह रहे थे. I was saying कि Snehi wanted to say something. Snehi, please go ahead. Did you unmute? I'm sorry, I didn't see. Snehi, are you there? You want to say something? So I'll just say, in case, obviously, after me, if she wants to go, if I can remember what I was about to say. हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैंने बहुत कुछ चेंज करा है अपनी लाइफ में. जैसे आई चेंज स्कूल्स व्हेन आई वाज इन क्लास 7th, क्लास 10th. उसके बाद में 2 कॉलेजेस चेंज करे, 3 यूनिवर्सिटीज चेंज करी. मतलब ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से जो मिल सकता था मिल गया. जितने फ्रेंड्स बन सकते थे बन गए. जैसे पहले स्कूल में एक फुली स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल था एजुकेशन का. दूसरा वाला एक बड़ा ही हार्डकोर पब्लिक सा, मतलब बहुत कीचड़ टाइप स्कूल था, which was a very different experience. थर्ड एक प्रॉपर एलीट स्कूल था, काइंड. तो जैसे जब आप मुझसे शेयर कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि कहीं पैशन बदल तो नहीं जाएगा, तो आई थिंक बदलना इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी, राइट? मतलब इट जस्ट शोज यू आर अलाइव, राइट? कि ऐसा तो नहीं है कि बस एक दत्ते का डब्बा है जो एक प्रोसेस लाइन पे चला जा रहा है, उसने अब एक प्रोसेस लाइन पकड़ ली और बस इसी में उसने एंड होना है. मतलब एक ये भी हमारे पास ऑप्शन है. एंड लॉट ऑफ पीपल लिव सच लाइफ, राइट? लाइक you see that that's the thing that they do from morning to evening throughout the life till they die. But for people who have choices, who can change passions, I think it's really a blessing if you have that opportunity to say कि हाँ, I thought मुझे अच्छा लग रहा है, जब तक था I gave it, I really enjoyed it, but अब मुझे उसमें मजा नहीं आता. But somehow, society has told us कि ये एक झूठ होगा. ऐसा कैसा हो सकता है कि पहले पैशन और फिर ना हो? मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं है. जब मैं छोटी थी आई यूज्ड टू लव बार्बी डॉल्स. उसके बाद आई लव्ड कार्स. उसके बाद आई डोंट नो आई लव्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स. और अब शायद मुझे खाली बैठना पसंद है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. आई एम अलाइव. आई एम allowed to change my opinion, my likings, and that doesn't make me a liar. I think that makes me beautiful and alive. I don't know. That's all I want to say. That's really beautiful what you shared, Tarun. Yeah. एक्चुअली इतनी आदत हो गई है ना मरे हुए रहने की कि वी पिकअप कि कुछ हो जाए तो बिल्कुल सटीक चलता रहे एक जैसा. और जबकि देखेंगे फैक्ट ऑफ लाइफ तो कौन है जो एक जैसा रहता है. एक पत्थर होगा जो एक जैसा रहेगा. और पत्थर तो हम है नहीं. व्हाट यू शेयर्ड सो ब्यूटीफुली, वी आर अलाइव. सो कैन वी जस्ट लिव अ लाइव लाइफ रादर देन फील guilty about feeling being alive. Yeah, that's so beautiful. No, इसमें एक और चीज भी है. I feel that say if you are doing something like this, that which has more life, I'll really look up to you. I'll be like, wow यार क्या जिंदगी है. passion हो तो ऐसा हो कि क्या anywhere है ना, giving her 100%. But if I'll do it because I feel so confined by what I'm supposed to and not supposed to do, I would not even recognize that I'm doing something expansive, and I'll feel bad about it. Like somehow it's easier to see it in others and appreciate, but अपने वक्त हम थोड़े ज्यादा strict हो जाते हैं. I feel like ये भी थोड़ा sad बात है, but yeah, it's like if we can allow ourselves not to do, to Yeah. catch that. Yeah, sorry, you were और saying. मुझे लगता है अगर हम ऐसे जैसे बात कर रहे हैं आज, अगर बात करेंगे भी तो जो दूर से लगता है कि बड़े पैशनेट और वट एवर उनके भी अगर आप अंदर जाकेंगे देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे. इट्स नॉट दैट एवरी डे दे वेक अप विद आहा स्कूबा डाइव फिर से.
No, they do get bored of scuba diving, and they have their days of not scuba diving and months of not doing certain things. But वो क्योंकि हम पास ना अपने जाते हैं और दूसरों के पास तो खैर जाने का मौका ही नहीं देते, तो इसलिए फिर पता नहीं लगता कि रियलिटी क्या है. Yeah. स्नेही, you wanted to share? Are you there? या सो गई स्नेही? चलो उठो. गुड मॉर्निंग. I think अभी तक होती तो बोल लेती, but stop harassing, मम्मी ने बुलाया होगा harassing. खाना खाने बेटा. स्नेही. I think हो गया. Okay, anyone else? I think Snehi may not be around. Yeah. So we'll have around 10 minutes to wind up, and if there is anything, any further sharing from anyone. Since nobody's sharing, I'll just share something really quickly. The other day, I was watching it was like a small clip on YouTube. It was about, a girl who loved, I don't know what was, kuch bhi tha, it was skating tha, I forget what the sport was. And she used to really love to do that, practice that and enter competitions. But then her mother got obsessed, in making her practice because she felt that, she will shine and, I will kind of shine through her. She was obsessed with her and stuff, and she kept doing it, and that then फिर एक बार दिखाया कि एक बार show में she kind of twisted her ankle, broke her arm and stuff, and then the doctor said she would not be able to, continue with this and stuff. तो उसमें काफी सैड सैड सा सीन दिखाया, बट एट द एंड ऑफ द क्लिप इट वाज लाइक कि व्हेन शी लीव्स द हाउस शी इज थ्रोइंग अवे हर बैंडेज, एज इन उसको लगी भी नहीं, but she was pretending to be hurt so that she can stop kind of practicing what she was made to, which started as love but it changed for whatever reason. She didn't know how to get out of it, and yet she faked because she just couldn't. देखने में अजीब लगता है कि अरे सीधा बोल whatever, but it's like it's strange how things work, how we change, and it's beautiful to be reminded of that you always can make that choice. Very interesting. ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम एक प्रिजन में हैं. We feel that we are trapped, we can't do things that I want to do, और पता भी नहीं लगता कि वो प्रिजन हमने ही क्रिएट किया हुआ है. Nobody has put me into prisons. ये पता ही नहीं लगता. तो धीरे धीरे अगर ये पता लगना शुरू हो जाए that I am the prisoner who is imprisoning my own self, तो धीरे धीरे अपने आप you let your एक कभी एक सलाख यहाँ से हटा दी, कब वहां से हटा दी, और धीरे धीरे अपने आप को हम हिम्मत देते हैं कि वो पूरा केज जो हमने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है वो हम हटा सकें. एंड दिस इज व्हाट इज वी आजकल यंगस्टर्स में भी कॉल सेल्फ लव की बहुत बात होती है. दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव. आई फील दैट bringing you, allowing you out of that cage that we have created for ourselves. First of all, looking that yes, the cage is present. लुकिंग कि हाँ बेड़ियां तो हैं, और वो क्या बेड़ियां हैं, कि किस तरह से मैंने अपने इर्द गिर्द जकड़ी हुई हैं. तो इन सबको पहचानना, देखना, और जब तक हम पहचानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आजादी कैसे आएगी, संभव कैसे होगी. या स्नेही, आर यू बैक? यू वांट टू शेयर स्नेही? आई थिंक वी लॉस्ट यू ऑन द वे. यस महिमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. हाँ स्नेही. Yeah, okay, please. Yeah, I'm so sorry. There was some issue with my laptop. तो जैसे आपने कहा ना कि you should take like the entire life as an adventure. तो इसमें I mean this actually makes me a little fearful because these drastic changes that happen, like losing a loved one, or
like financially also, like it's like drastic changes. I am a little fearful, I think, of that, and that's why I think I'm not able to take life as an adventure. I mean, I don't know if that makes sense, but yeah. Thank you, Snehi. Yeah, Taru, please go ahead. I just had a quick question from Snehi. Fearful से मतलब डर से would it change the course of events? Have you thought of that? Or it just stops you from doing what you would actually have enjoyed is the only thing that's coming to me. Yeah, I mean, it does stop me, I think. I mean, because I mean, even my parents, I think, encouraged me to opt for that safe, secure path and not take like extreme risks and stuff. And yeah, because if I, take those extreme risks, and because I've always felt alone, I think, and that is why, like, I will have to bear the consequences of my choices. So I have to be careful and take like well informed choices. I mean, yeah. I'm Thank you for sharing. स्नेही, जब आप ये बात बता रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो, आप सोच के देखना, जस्ट से आप किसको बड़ा बना रहे हो? एक्सटर्नल सिचुएशंस को बड़ा बना रहे हो या खुद एक्सपेंडेड फील कर रहे हो? बड़ा कौन बन गया? एक्सटर्नल सिचुएशन ही हाँ हाँ। सो जब हमने उनको बड़ा बना दिया तो आपने क्या किया? एज इफ यू हैड अ फ्यूल होज, जो जैसे वाटर होज होता है ना, जिससे पंप भरते हैं पेट्रोल, वो आपने एक्सटर्नल सिचुएशन को पावर दे दी कि लो, बड़े बनना चाहते हो? हाँ हाँ बनो, बिल्कुल। हाँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। हाँ हाँ हाँ, करो जो, अगर अच्छा डरना है, लो डर जाती हूँ। तो आप ये कर रहे हो। कैसी लगी ये पिक्चर? और मुझे स्नेही समझो, ठीक है? तो ये मत समझना कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसके पास कोई ताकत है। ये हमें पहचानना होगा। उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसको फ्यूल कौन दे रहा है? उसको बड़ा कौन बना रहा है? उसको बड़ा कौन बना रहा है? उसको बड़ा मैं बना रही हूं। पीपल गो थ्रू व्हाट ऑल इन देयर लाइफ, दे गो थ्रू सो मच इन देयर लाइफ, और अगर वो हर चीज को बड़ा बना दें तो फिर तो कोई नहीं जी पाएगा। कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि माना हम कितने भी टुच्चे और छोटे हैं, हमसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। Nothing is more important than my sanity and than my strength. So let life bring it on. I will see. इतना हम में शक्ति हमने डेवलप करनी है। थैंक यू संभव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दिस हैज टू बी डेवलप्ड, दिस इज देयर विद इन ऑल ऑफ अस, बट इट हैज टू बी गिवन स्ट्रेंथ। और गिव स्ट्रेंथ कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ तो उसके अंदर है ही है, आप उसकी स्ट्रेंथ बार बार ले लेते हो। वो वाले ओकेजन्स आपने नोटिस करने हैं। कब आप स्ट्रेंथ ले लेते हो? जब आप किसी भी बाहरी चीज को बड़ा बना देते हो, तो आप उससे स्ट्रेंथ ले लेते हो, खींच लेते हो उससे, एज इफ यू आर सकिंग ब्लड आउट ऑफ योर स्ट्रेंथ। एंड when do you give strength to it? I give strength to it when I do all those steps in which I may be fearful, I may be hesitant, but I allow myself still to do it. ऐसा नहीं है कि फियर रात भर में गायब हो जाएगा। फियर तो देखो रहेगा। फियर के साथ हमको रहना सीखना पड़ेगा। फियर के रहते हुए भी सही काम करना सीखना पड़ेगा। फियर है, एंजाइटी है, पैनिक भी हो जाता है कभी कभी, बट मैं करूंगी तो वही जो मुझे एक्सपैंड करता है। मैंने अपने प्रति एक ये संकल्प उठा लिया है। अच्छा, मैं गिर जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी। दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव, that you are so much in love with yourself that no matter what the outer circumstance is,
You don't allow yourself to be pettier than the circumstance. हमें पता भी नहीं है how much power, how much potential, how much strength we have. We don't know. So we have to slowly allow ourselves to unmask that power within us. हाँ, डर है, सब कुछ है, लोगों की भी बातें सुननी पड़ रही हैं, लेकिन करूंगी तो भैया मैं वो जो मुझे आजादी की तरफ लेके जाता है, जो गुलामी की तरफ लेके जाता है, मैं वो नहीं करूंगी। जिद्दी हो जाओ, हठी बन जाओ। ये जो हम आपके सामने आज बैठे हुए हैं, तरु बैठी है, मैं बैठी हूँ, we are very stubborn. At times we are also very flexible. It's not that always their stubbornness is there. We have to be stubborn. कि पता है टांगे टूट रही हैं, पता है बैक में हर्ट हो रही है, बट यहां बैठना जरूरी है। This is how you give strength to that power within you. तो डर भी खत्म नहीं होने वाला, एंग्जाइटी खत्म नहीं होने वाली। People will be there to insult you, reject you. Still I would do. Arrogant, बिल्कुल, stubborn, बेशर्म। This is how one gets strength, I would say. No? तो हमने वेट नहीं करना फियर खत्म होने का, हमने एंजाइटी खत्म होने का वेट नहीं करना, हमने अपनी समझ से वो कदम उठाना है जो हमारे लिए सही है, जो हमें एक्सपैंड करता है, जो हमें बंधा हुआ फील नहीं करने देता। एक कदम उठाओगे दूसरे की शक्ति मिलेगी, दूसरा उठाओगे तीसरे की शक्ति मिलेगी। कभी कभी हो सकता है गिर जाएं, पस्त हो जाएं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, फिर से उठ जाओ जिद्दी की तरह फिर से। दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव। कि बहुत तरु सेज इट अगेन एंड अगेन, शेयर दिस कोट बाय आचार्य प्रशांत, कि हारेंगे हम बहुत बार, बट कोई भी हार आखिरी नहीं होनी चाहिए हमारी। किससे हारेंगे? डर से हार जाएंगे, फियर से हार जाएंगे, एंजाइटी से हार जाएंगे। हाँ, हारेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। बहुत जिद्दी हैं हम, बहुत प्यार करते हैं अपने आप से। या यू वर शेयरिंग समथिंग, स्नेही? I mean, yeah, I mean that's such a powerful quote. I mean the one that you shared, and yeah, and Besharam I think is such a wonderful. It has like negative connotations to it, the word Besharam, but I think, yeah. Taru had shared once this quote by, I think, Art of Living guys, that the day you lose respect is the day you start living. है ना? उसको भी मुझे लगता है उसमें बहुत सच्चाई है इस चीज में, कि अगर सबकी परवाह करते रहे रेस्पेक्ट की और भारी सिचुएशंस के चलो चेंज होने की जो भी है, तो नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, है ना? तो जीना आज शुरू करना है। सिचुएशंस बाय इफेक्ट, बाय साइड इफेक्ट ऑफ इट बदलेंगी या नहीं बदलेंगी वो देखेंगे। या तरु, यू वांटेड टू शेयर? Yeah, I wanted to say, what I'm about to share would sound really extreme. But जैसे पहले महिमा भी शेयर करी थी, अभी स्नेही ने भी बोला कि somehow parents ने भी, सिखाया है कि बच बच के जीना है ना? And somehow that is kind of a state of our upbringing. When I was growing up, like a teenager, like late teens and stuff, so I remember a lot of, rape cases एकदम से surface हुए थे. And then newspaper पे, एक seal सी आती थी बनी हुई kinds कि it was just a marketing strategy that Delhi is unsafe for women. So, it's like what to do with it? Like reading that thing that Delhi is unsafe for women, what did it give to me? Just that unsafety factor. So what I did was I just stopped reading the newspaper, because I knew I couldn't handle it. I knew I didn't want to believe it, because believing in it just made me smaller. So I remember when I went to the US for my education and stuff, वहाँ पे मैं एक सिटी में रहती थी जहाँ पे 0 क्राइम रेट था, जहाँ पे जो पुलिस होती थी वो मोस्टली लोगों की गाड़ियां खोलने, अगर गाड़ी अंदर चाबी रह गई या कैट्स को ट्रीज वगैरह से उतार रही होती थी, मैंने और कुछ उनको करते हुए नहीं देखा। और वहां पे भी इफ लेट इवनिंग आई एम डूइंग माई लॉन्ड्री, वहां पे ना लॉन्ड्रोमैट्स बाहर हर सोसाइटी में 4-5 मशीन लगी होती थी, आई यूज्ड टू हैव सो मच फियर inside me while walking to and back from the
hardly 200 meters from my apartment, because वो कहीं पे कि this I'm a girl and things are unsafe. और चाहे ज़रूरत वो सिचुएशन वहाँ पे डिमांड भी नहीं करती थी वो फियर, बट वो इतना घुस चुका होता है कि हम क्वेश्चन भी नहीं करते कि क्या मुझे यहाँ पे भी डरने की ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़ ये जो एक सेफ्टी की बात है, अगेन इट वुड साउंड एक्सट्रीम, बट हम अपने आप को बचाते रहते हैं। लाइक आई हैड अ यंगर ब्रदर 35 years एज हु लव टू डू स्कूबा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, even sometimes like drunk driving kinds के youth वगैरह में how in college and stuff. And finally he मतलब his life ended when he was hit by lightning on a beach when he was surrounded by 7-8 members of his family, totally safe, everything fine. तो मतलब that kind of brings us to the question कि कैसे बचाएंगे, किसको बचाएंगे तो आइदर तो तुम ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ऐसे हो सकते हो कि तुम डर के अंदर ही बैठ जाओ कि भैया बिजली भी गिर सकती है, अच्छा पर और बच जाओ, है ना, ट्राई टू सेव योर सेल्फ मोर। और यू कैन ओपन योर रिस्ट एंड से कि अरे छोड़ दिया बचाना, क्या बचा सकते थे जब कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगेन यू हैव लाइक पेरेंट्स का एक अपना रोल था लाइफ में, है ना, दे हैड टू काइंड ऑफ रेज यू एंड मेक श्योर दैट जब आप छोटे हो आप काइंड ऑफ अंडर देयर प्रोटेक्शन नथिंग हैपेंस और whatever, बट हमको ये बात को क्वेश्चन करना पड़ेगा फॉर माई सेल्फ कि इज माई एक्शन, माई ट्राइंग टू सेव मी सेविंग मी, और इफ समथिंग हैज टू हैपन तो मैं जी तो लूं। अगेन लाइक आई सेड इट माइट साउंड एक्सट्रीम, सो डोंट टेक इट इफ यू डोंट वांट टू, बट आई फेल्ट दैट एज अ रियलिटी फॉर मी। सो या आई थिंक वही होती है ना कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी जो बैठे हैं अभी वो बोलेंगे हमारे में पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। मुझे लगता है कि हम इतना ज्यादा अपनी बुरी हालत को बर्दाश्त करने लग जाते हैं। मतलब हाउ लॉन्ग कैन वी टॉलरेट लिविंग सच अ सफोकेटेड लाइफ? इट्स रियली अमेजिंग, लाइक कूडोज टू अवर सेल्व्स कि इतने सालों सालों वी लिव इन ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रैंगुलेटेड, वांटिंग टू लिव बट नॉट एबल टू लिव, वांटिंग टू लिव बट नॉट लिव, और उसको हम टॉलरेट करते जाते हैं एंड देन वी से आई एम इम्पेशेंट। कहाँ से इम्पेशेंट? अगर इम्पेशेंट होता कोई तो उसको एक दिन भी ना झेले कि भैया ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। तुम रखो अपना पैसा अपने पास, मुझे तो जीना है। तो वन हैज टू डेवलप दिस लव फॉर लाइफ, कि चाहे जितने भी दिन है उसको जिएंगे, मरते मरते नहीं जिएंगे, जीना शुरू करेंगे sooner than later. And we all deserve such kind of a bright life. We all deserve that. Yeah. Great. Then anything else, or we call it a day or night? Avirin, I think you're joining us for the first time. Is there anything you want to share? Any last comments you want to give before we close down, or that's it? Yeah, you're unmuted. I can't think of anything right now, but I loved hearing to all of your stories and perspectives. So it was quite interesting, and thank you for that. Thank you, Avirin. Thank you for joining, Viren. So I think we can Yeah. then, yeah. Yeah. Thank you, Snehi. Thanks, Snehi. Thank you for joining.